رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے یہاں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارا نفس اور آج کل کے اخلاق۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جو بات اچھی کرتا ہو، جو لوگوں کی برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہو، جس کی طبیعت میں وفا ہو، جس کے انداز میں مروت ہو، جس کے انداز میں محبت ہو، بھائی چارہ ہو، حسن سلوک ہو، رواداری ہو۔ ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی اہل الجنہ لمن حسن خلقہ، تم اپنے اچھے اخلاق کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گال لے کے دوں گا۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تو اس سے پتہ چلا اچھے اخلاق بنانے کے لیے ہمیں اس زبان کو قابو رکھنا ہے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ لیکن آج کا معاشرہ دیکھتے ہوئے ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری زبان لوگوں کو چیر دیتی ہے۔ زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، ذلیل کرنے کے بول، عورت ہو یا مرد آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورت مشہور تھی کہ یہ تانے بہت دیتی ہے، دل آزاری کے بول بولتی ہے۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے اور عورت بھی ایسی ہے کہ زبان میں ایسا زہر ہے ان کے اندر کہ ایک ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہے جو آج تیری میری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ میں بھی اتنا زہر نہیں جیسا آج تیری میری زبان کا زہر ہے۔ ایک جملہ بول کے بندے کو مہینوں تک تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کے اگلے کی زندگی کا سکون غارت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنے نفس کی انانیت کے لیے، اپنے تسکین کی انانیت کے لیے ایسے زہریلے جملے بول دیتے ہیں کہ ہائے ہائے، انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز شراب نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سود نہیں ہے، گانا نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، روزہ کا نہ رکھنا نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فرماتے ہیں معاذ تمہیں میں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل فرماتے ہیں جی میری حضور فرمائیے۔ کہا اے معاذ، اپنی زبان کو باہر نکالا اور اپنی انگلی سے پکڑا۔ معاذ بن جبل وہ ہے جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے ان چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا اے معاذ، اپنی زبان کو قابو رکھنا، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی ہماری یہ زبان ہے۔ ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، 100 میں 10 نمازی بھی ہے، روزہ رکھنے والے بھی مل جائیں گے، 40-50% جمعہ پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن لاکھ ڈھونڈو اس زبان پہ قابو کرنے والا کوئی نہیں۔ 100 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ 1 لاکھ 1 کروڑ
वाला कोई नहीं, जो बोलने से पहले एक बार सोचता हो कि किसी की बेइज्जती तो नहीं हो रही, किसी की बेइकरामी तो नहीं हो रही, कोई मेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाएगा, कोई मेरी कही हुई बात से किसी का दिल चूर चूर तो नहीं होगा, कोई मेरी वजह से दिल को पारा पारा होता तो नहीं देखेगा। ऐसा सोचने वाला करोड़ में एक भी नहीं। मदरसा पढ़ने वाले भी लाखों हो चुके हैं, तबलीग में जाने वाले भी लाखों करोड़ों हो चुके हैं, खानकाहों में भी लाखों लोग मौजूद है, दीनी तहरीक में भी लाखों लोग मौजूद है, लेकिन इस जबान पे काबू रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। नफस गंदा गंदे बोल से होता है, दिल आजारी के बोल से होता है, बेइकरामी के बोल से होता है। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला मर्द और औरत दोनों से खिताब करता है कि कोई औरत किसी औरत का दिल आजारी का बोल ना बोले, कोई मर्द भी नहीं दिल तोड़ने का बोल ना बोले, जिगर खराशी का बोल ना बोले। अगर तुम दिल नवाज नहीं हो तो जिगर खराश भी ना बनो। अगर तुम लोगों के दिलों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते तो आग भी ना लगाओ। अपनी ज़बानों पर ताला लगा लो। अगर अपने नफ्स को पाक करना चाहते हो तो एक अपनी इबादत को ठीक करो, वो होता है अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाने में, नमाज पढ़ने में। नमाज को खूबसूरत बनाओ। यहाँ जितने लोग हैं मौजूद वे नमाजी भी होंगे और नमाज पढ़ने वाले भी, सीधी सी बात है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन आदत वाली, तेज तेज वो नमाज नहीं है जो दिल को खींचे। अपनी नमाज को बेहतर बनाओ, ये सोच के कि अल्लाह ताला से बात करनी है। 2 के 3 मिनट लगाओ, 3 के 5 मिनट लगाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सदका करो। अल्लाह ताला ने माल के खर्च करने का हुक्म गरीबों को भी दिया है। अला कुल्ली मुस्लिमिन सदका, हर मुसलमान पर सदका वाजिब है। तो इस शख्स ने फरमाया या रसूल अल्लाह अगर पैसे ना हो तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि मजदूरी करके पैसे कमाए और अपने ऊपर भी खर्च करे और कुछ लोगों के ऊपर भी खर्च करे। दूसरी चीज जिससे हमारा नफ्स पाक होता है वो है इखलाक। इखलाक 90% जुबान के मीठे बोल का नाम है। मेरे रब ने कहा तुम्हारी बदतमीजी तुम्हारे चेहरे से भी ना हो। एक जुबान का बोल होता है ना, जुबान का बोल जो दिलों को फाड़ देता है। लेकिन बाज़ औकात आदमी चेहरा इतना यबूस बनाता है, चेहरे पे इतनी वहशत ले आता है, अल्लाह कहता है ना 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 वो भी ना करना। नजरों के कहर बरसाता है, नजरों से शोले बरसाता है, तो अल्लाह कहता है तेरी नजर में भी प्यार हो, तेरी नजर में भी प्यार हो, तो तेरा नफ्स पाक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इबादत में कसरत दिखाई तो अल्लाह ने कहा रुक जाओ मेरे महबूब, इतनी भी इबादत न करो कि तुम्हारे जिस्म को तकलीफ हो। लेकिन जब इखलाक में बारी आई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक में बेहतरी दिखाई तो अल्लाह ने रुक जाने के बजाय कहा कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, शाबाश मेरे महबूब, शाबाश, और बेहतर बन जा। इखलाक रुकने की चीज नहीं है, इखलाक को बढ़ाओ, इसमें और बेहतरी लाओ। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब लोगों के सामने बिछ जा, सब्र कर, अपने पर फैला। आदमी के पर तो नहीं होते ना, बाजू होते हैं। लेकिन जब शिकारी किसी परिंदे का शिकार करने जाता है तो परिंदा बेबस नीचे गिरता है और अपने पर फैलाता है और कहता है मैं ज़बा होने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह ने कहा वक़्फ़िद, लोगों की बदतमीजी के आगे बिछ जा, ज़बा हो जा। ये मत कह कि मैं कितना सब्र करता, ये मत कह कि मैं भी इंसान हूँ, मैं कितना चुप रहता। तो उनकी बदतमीजी को सहता जा, वक़्फ़िद, उनकी हर बदतमीजी को सहता जा, उनकी हर तकलीफ को सहता जा। यही तेरा काम है, यही तेरा काम है। कुर्बान जाऊं इतने आलिम इखलाक के बावजूद भी अल्लाह ने इतनी ताकीद के साथ फरमाया ए मेरे महबूब अपने पर फैला दे जख्मी परिंदे की तरह। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बाने हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। वो ये करता है, वो ये करती है, उसे ये नहीं आता, उसे ये नहीं आता, वो यूं सुनाती है, वो यूं सुनाता है, वो ऐसी है,
हमेशा ही नहीं। मेरे अल्लाह को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मेंबर पे लंबी लंबी तकरीरों की जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, कट जाओ, लुट जाओ, सब्र करो और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीखो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिश्ते के लिए, छोड़ दो गाँव बनने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब हो जाओगे। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाही आईना साज में। दिल को टूटने दो, इसे टूटने दो, तोड़ने वालों को कहो आ जाओ इधर आस्तमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लोगों को बोलने दो, तुम सुनते जाओ और सहते जाओ। तुम वक्त के जुनैद बगदादी होंगे, तुम आह ना करो, उफ ना करो, तुम वक्त की राबिया बसरी होगी। खुदा की कसम अगर बड़े बड़े इबादत वाले भी होंगे, वो भी तुम्हें क्या तुम्हारी गल्ब को भी छू नहीं सकते। अगर तुम अपने इखलाक काबू करना सीख लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की बदतमीजी हर तकलीफ को सहना सीख लो, बुरा से अच्छा बनना सीख लो, बुरा करे तो कोई मुस्कुराना सीख लो, बर्दाश्त करना सीख लो। अल्लाह के सामने बिछ जाओ, अल्लाह से माफी मांगो पिछली गुनाहों पर और आगे अच्छी गुजारो। किसी से कोई तकलीफ मत रखो, किसी की नफरतें मत पालो दिल में। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। यहाँ किसको रहना है, यहाँ से तो आखिर हर किसी को तो जाना है ना। अल्लाह के सामने माफी मांगो अपने गुनाहों की। आंसू न निकले तो एक आह भर दो, वो भी तुम्हें पता नहीं कहां से कहां पहुंचा के रख देगी। उलझे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर और हालात के कब्रों के ये कुतबे भी पढ़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। उस अल्लाह को पुकारो, तन्हाई में क्यों इधर उधर फिर रहा है खुदा की तलाश में। अल्लाह को जमीन और आसमान में तलाश कर रहे हो। एक शायर कहता है जलवे तेरे कू बकू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह जमीन में है या आसमान में? तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो बंदा-ए मोमिन के दिल में हूँ। अल्लाह तो बंदा-ए मोमिन के दिल में है, क्यों दर बदर फिर रहा है इधर उधर अपनी खुदा की तलाश में। अगर वो तेरे दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं है। इस जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। आशिक तो रोते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जरूरी तो नहीं कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो पता चलता है। महबूब को पता है कि कौन कहाँ कहाँ पे रोता है। लब हुआ है, आंखें बंद है, फैली है जोलियाँ, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सबको माफ करना सीखो, आगे बढ़ते रहो, अपने इखलाक अच्छे बनाओ, अपनी इबादत अच्छे बनाओ। लोगों के साथ कोई नफरतें पालो मत, क्योंकि इज्जत जिल्लत उसके हाथ, कौन घटाए किसकी जात। नादान को इस बात की बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा। अगर कोई आपके साथ बुरा करे ना तो सब्र कर लेना, कभी अहमद करना, कभी उफ मत करना। उस अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दो, वो अपना हिसाब खुद लेगा, वो अपना हिसाब खुद लेगा। अगर आपकी कोई बेइज्जती करेगा ना, कुछ मत कहना यहाँ से, क्योंकि छोटी नवाजिशात की बारिश फजूल है, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है। मुझको जलील करने की तेरी साजिश फजूल है मेरा कदम कदम पे मददगार वो खुदा, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। तो आज से नियत करते हो ना कि अपने नफ्स को पाक करोगे। बोलिए, करते हो ना नियत कि आज से अपने नफ्स को पाक करोगे। तो एक बार हाथ उठा के कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें आगे अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम।